हमारे देश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, I will authenticate it. But you authenticate that. I'm lying, please. Honorable Minister. भारतीय सेना ने, भारतीय सेना के नायकों ने और उस वक्त की लीडरशिप ने एक बहुत बड़ा काम किया था। हम विजय दिवस के विषय पे आप बात नहीं कर सकते, उस पर सरकार बात करेगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मामला उठाकर लोकसभा में क्या कुछ बोली। अखिलेश यादव ने संबल में अतिक्रमण हटाने के मामले पर किसको घेरा। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जयराम रमेश आपस में क्यों उलझे, और सुबह सुबह संसद भवन परिसर में प्रियंका ऐसा कौन सा बैग लेकर आई जिस पर दिन भर चर्चा होती रही। कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा से क्यों वॉकआउट कर दिया, और इस सब के अलावा लोकसभा राज्यसभा के बाहर क्या सब हुआ, वो हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। हमेशा की तरह आपको करना यह है कि हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। सोलह दिसंबर 2024 संसद के शीतकालीन सत्र का 17वां दिन सुबह 10 बजे सांसद संसद भवन परिसर में जुटने लगे। कांग्रेस महासचिव व वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के लोगों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए एक ऐसा हैंडबैग लेकर के संसद भवन पहुंची जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। ये तो बात हुई बाहर की। अब आपको एक एक करके दोनों सदनों के अंदर लेकर के चलते हैं, जैसा कि रोज ही हम अपने शो में करते हैं। आज पहले राज्यसभा की बात। सभा बैठी तो आंध्र प्रदेश के साना सतीश बाबू और विधा मस्तान राव, पश्चिम बंगाल से टीएमसी के रीता व्रत बनर्जी के साथ ही हरियाणा से नवनिर्वाचित सांसद रेखा शर्मा को सदस्यता की शपथ दिलाई गई। नाम थोड़े मुश्किल थे, मैंने कोशिश की है, अगर कहीं गलती हुई हो तो माफ करिएगा। इसके बाद संविधान पर चर्चा शुरू हुई राज्यसभा में। राज्यसभा सांसद और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की शुरुआत करते हुए करीब 1 घंटे का भाषण दिया। अपने भाषण में निर्मला सीतारमण कांग्रेस की पिछली सरकारों को निशाने पर लेती रहीं। इसी भाषण में वित्त मंत्री ने जीएसटी का जिक्र किया। तभी कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने टीका टिप्पणी की और फिर निर्मला सीतारमण और जयराम रमेश आपस में उलझ गए। Despite being a coalition comprising of 26 parties, the UPA could not manage to get this GST. Even Congress-ruled states were opposed for the GST to be brought in. 2012. I'll say that as well. I'll say that as well. That will also be said. 3 BJP-ruled states. 3 BJP-ruled states also opposed. I don't hide facts. 3 BJP-ruled states also opposed, including Gujarat. I'm saying that. Sir, I'm saying it, sir. I'm saying it myself that Gujarat opposed it. I'm saying it myself. अरे नंबूत्री बात गवर्नमेंट को सेव नहीं कर पाया कांग्रेस से, आप क्या खड़े हो रहे हो? कम्युनिस्ट है, बैठ जाओ। सर, 3 non-BJP ruled states, sir. So I don't. 3 non-BJP ruled states. I said about Gujarat, now I'm saying non-BJP ruled states, including Congress-ruled Maharashtra, opposed provisions of the UPA's GST. So if they want to first shout about Gujarat, I'm saying it myself. But please do shout about Maharashtra as well. No, they want to pretend they were all ready. They were not ready. Sir, Congress-led ruling UDF government, all right, in Kerala voiced severe concerns. Okay, sir, left front opposes, UDF opposes, Congress is part of the UDF, but no, they will never say that. One Gujarat is what they want to say. And I'll tell you why Gujarat had to oppose also. So, they could not bring the GST amendment. When we bring it, this is how they would like to shout about it. But I'm sorry,
I'm not lying, sir. I'm sorry. I will have to demand a written apology from Shri Jairam Ramesh for accusing me of lying, which I never do. And whether it is parliamentary or unparliamentary, first of all, sir, the chair, I trust you will take care of that. But accusing me of lying is now very clear, runs in the Congress blood. Somebody had to go to the court to say sorry. When I was the defense minister, not only did they call Prime Minister Modi as a chore, but they kept calling me that I'm lying. And who had to go and apologize in the court? And now I wouldn't mind seeing another member going and apologizing in the court, although the word said in the parliament is never taken to the court. Sir, all MPs in the House, when the GST was brought in, and this is also something which the Congress will have to gulp if they can, all MPs present in the House, including those of the Congress, had voted for the GST constitutional amendment which was brought in by Prime Minister Modi. In fact, I wouldn't mind if Jairam Ramesh once again calls me that I'm lying, but records of the parliament will say it. Jairam Ramesh wanted to move some amendments, but Dr. Manmohan Singh personally asked him not to do so because of the fine consensus that has been arrived in the GST Council. Yes. Sir, I don't lie, records don't lie. Don't jump in a hurry to accuse me that I'm lying. Sir? I will authenticate it. But you authenticate that I'm lying, please. Honorable Minister. Honorable Minister, it's a fair comment by Jairam Ramesh. You need to authenticate it. Yes. And during the course of the day, when I watched the Lok Sabha debates, I frequently came across, please authenticate. It is started in this House. Honorable Minister. Thank you, sir. I will authenticate. And despite the support given by the Congress in passing the amendment, GST constitutional amendment, you have the Congress leader, again not taking name, goes about calling the GST a Gabbar Singh tax. Sir, and therefore, about amendments, I have said some words. Now I just want to highlight... Minister, but if some Gabbar Singh comes and files a suit then? Sir? If some Gabbar Singh in the country comes forward, oh, yes, that I have been defamed then? That's right, sir. And the problem, sir, when GST matters come, I will sometime again speak as much as I've done it earlier. Congress ministers are sitting and arguing about rates, sir, that they will not know. The GST Council, Congress finance ministers are also sitting and talking about it. निर्मला सीतारमण का संबोधन आगे बढ़ा, कोटा और लाइसेंस राज का जिक्र हुआ, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात भी याद दिलाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस बयान का भी जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने एक बार कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे ही पहुंचते हैं। इन सभी तथ्यों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर एक के बाद एक कई तीखे हमले किए। Electoral process does teach lessons. Does teach lessons, and Srimati Indira Gandhi learnt that lesson. I want to say this to the Congress party today. Srimati Indira Gandhi learnt the lesson, and I'm happy Jairam Ramesh says that she stood up to support the amendment Morarji Desai and his government was bringing. But today's Congress, sir, I'll come to that. Sir, today's Congress is the matter that we need to talk about. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला। उन्होंने संविधान की यात्रा विषय पर बोलते हुए मौजूदा सरकार को घेरा। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने इंदिरा गांधी सरकार के समय बांग्लादेश की आजादी का जिक्र किया और कहा कि 1 लाख लोगों को बंदी बनाना आसान काम नहीं था, लेकिन आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने बता दिया कि हमारे करीब आए तो खैर नहीं, हम तो म्युनिसिपैलिटी स्कूल से पढ़े हैं, वो जेएनयू से पढ़े हैं,
अंग्रेजी भी अच्छी हो सकती है लेकिन उनकी करतूत अच्छी नहीं है। ऐसा कह करके मल्लिकार्जुन खड़गे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साध रहे थे। देखिए उन्होंने क्या कहा। सर, हम तो म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़े हैं, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। निश्चित है कि उनकी अंग्रेजी भी अच्छी हो सकती है, उनकी हिंदी भी अच्छी हो सकती है और सभी कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन उनके करतूत क्या है, अच्छे नहीं। अहमद फराज की मत कत्ल करो आवाज है उसका नाम। तुम अपने अंकितों के नेज़े हर दिल में उतार जाते हो, हर दिल में उतारे जाते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो। हम पालनहार है फूलों के, हम पालनहार है फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं। तुम किसका लहू पीने आए, तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार सिखाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे, इस शहर में फिर क्या देखोगे जब हर यहाँ मर जाएगा, जब तेग पे लय कट जाएगी, जब शेर सफर कर जाएगा, जब कत्ल हुआ सूर साजों का, जब काल पड़ा आवाजों का, जब शहर खंडर बन जाएगा, जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे, संग यानी पत्थर, फिर किस पर संग उठाओगे। अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। 1 घंटे लंबे अपने भाषण में उन्होंने बार बार मौजूदा सरकार को घेरा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को संविधान के 42वें संशोधन का पूरा क्रेडिट देते हुए उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं पर और बीजेपी के टॉप लीडरशिप पर ईडी, सीबीआई की धमकी दिलवाने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने वॉशिंग मशीन का भी जिक्र किया। हर लोग यहाँ वो एक वॉशिंग मशीन बड़ी खरीदी है, कौन, हमारे शाह साहब, इतना बड़ी वॉशिंग मशीन करे, आदमी अंदर जा सकता है और क्लीन होके बाहर आता है, अंदर जाके क्लीन होके बाहर आता है। और वो जाके इतना जोर से चिल्लाता है, अरे क्या खाया पिया रहा, राज किया, कोई सब कुछ बना। वही यहाँ पर हमको बुद्धि पढ़ाते हैं और उल्टा बयान देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा भाषण देखना चाहिए, लेकिन हम चाह कर भी आपको ये पूरा भाषण यहाँ नहीं दिखा सकते, नहीं सुना सकते। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियो के, दोनों नेताओं के पूरे भाषण का लिंक मिलने वाला है, जो कि आप अपनी सुविधा से देख सकते हैं जब भी देखना चाहें। फिलहाल हमारे शो के साथ बने रहिए। तो इन दोनों नेताओं के बाद राज्यसभा के बाकी सांसद इस चर्चा में भाग ले रहे हैं और आपको बताएं कि वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक राज्यसभा में इस मुद्दे पर, संविधान पर, देश के संविधान पर चर्चा चल रही है। अब लोकसभा का रुख करते हैं। यहां भी कार्यवाही सुबह 11 बजे ही शुरू हुई, रोज की ही तरह। प्रश्नकाल के दौरान प्रियंका गांधी ने वायनाड संसदीय क्षेत्र में जंगली पशुओं के हमले में पिछले 1 साल में 19 से ज्यादा व्यक्तियों के निधन को लेकर के मामला उठाया। इसको लेकर के उन्होंने सवाल किया। आप प्रियंका गांधी का सवाल और जो मंत्री है, जिम्मेदार मंत्री हैं, उनका जवाब सुनते जाइए। श्रीमती प्रियंका गांधी वाडा। I would ask, Honorable Speaker, sir, I would like to add to the question on the animal-man conflict. In my constituency of Wayanad, in the last 1 year, 90 people have been affected by this conflict. And just yesterday, there was an attack by wild animals, by a wild elephant on someone. So I would also like to ask that the compensation be increased, especially for farmers and for ordinary people who are being affected by this conflict. Thank you.
माननीय अध्यक्ष महोदय की माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो इस मूल प्रश्न से अलग है। उनका जो वायनाड क्षेत्र है, वायनाड क्षेत्र में विशेष रूप से 3 तालुका क्षेत्रों में, मनंतवाड़ी में, सुल्तान बट्टी में और वैतरी में, वहाँ पर मैं खुद गया था। हम लोगों ने पूरी टीम बनाई थी। हमारे द्वारा वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेस्ट के द्वारा एकीकृत रूप से कार्य किया गया था। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये केरल, तमिलनाडु और हमारे कर्नाटक, इन तीनों का एक बड़ा क्षेत्र है। उसमें जो संयुक्त क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। क्योंकि प्रश्न मूल प्रश्न के साथ नहीं है, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसकी कॉपी में उनको उपलब्ध करा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कुछ पत्र जो कि गांधी परिवार को सौंप दिए गए थे उसका मामला प्रश्नकाल के दौरान उठाया। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान इस पर सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि प्रश्न संदर्भित प्रश्न से सम्मानीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा वो कहीं संबद्ध नहीं है। उनका सुझाव है, सुझाव मैंने लिख करके रखा है, यथाचित कार्रवाई उस पर की जा सकती। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल शुरू हुआ। इस दौरान सांसद अपने अपने मुद्दे उठाते हैं जो उन्हें जरूरी लगते हैं। AIMIM के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संभल मामले को लेकर के देश के कई अलग अलग हिस्सों में मस्जिद के नीचे मंदिर खोजे जाने का मामला उठाया। उन्होंने वर्शिप एक्ट को आधार बनाते हुए मौजूदा सरकार से पूछा कि सरकार इस बारे में क्या रुख रखती है। माफ करिएगा, उन्हें खुलकर बताना चाहिए। वैसे तो ओवैसी साहब ने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया, लेकिन भाषण के आखिर में थोड़ा सा वो हिंदी में बोले। वो वाला हिस्सा आप सुनते जाइए। कहीं ऐसा ना हो मैडम के लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। मैं हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं कि ऐसी तंजीमों की हरगिज सियासी तौर पर सरपरस्ती ना करें जो इस मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शून्यकाल के दौरान ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विजय दिवस के मौके पर बांग्लादेश युद्ध में भारतीय सेना की वीरता और उसकी वजह से जो जीत भारत को मिली उस पर उन्होंने बोलना शुरू किया, बधाई देना शुरू किया। ऐसा करते हुए उन्होंने भारतीय सेना को बधाई दी, तत्कालीन रक्षा मंत्री के योगदान का जिक्र किया, लेकिन देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जिक्र बहुत मजबूती से वो नहीं कर सके। उन्होंने किया, लेकिन इस बात से नाराज होकर के विपक्ष की तरफ से हंगामा होने लगा, कांग्रेसी सांसदों की तरफ से हंगामा होने लगा। देखिए उन्होंने क्या कहा और उनके कहने पर कैसी प्रतिक्रिया हुई। धन्यवाद सभापति महोदया। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर को आज के ही दिन बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। भारतीय सेना ने, भारतीय सेना के नायकों ने और उस वक्त की लीडरशिप ने एक बहुत बड़ा काम किया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने बंदी बनाकर छोड़ा था और पाकिस्तान ने जो प्रजातंत्र की हत्या की थी, लोकतंत्र की हत्या की थी, हमने वहां लोकतंत्र स्थापित किया था। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभापति महोदया देश को यह बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन में नजरुल इस्लाम, त्रिपुरा के जो राजा थे बर्मन फैमिली, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे मुकुल सांगमा जो टीएमसी में है उनके पिताजी, और सबसे बड़ा जो योगदान रहा बाबू जगजीवन राम का, उस वक्त के रक्षा मंत्री जो थे, उनको इतिहास ने जो है, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा वही सफल हुआ था। दलित, वंचित, शोषित समाज से आने वाले बाबू जगजीवन राम ने जो ये भूमिका निभाई थी, उनको इतिहास ने भुला दिया। इंदिरा जी का योगदान था, कोई उसको नकार नहीं रहा है, लेकिन बाबू जगजीवन राम के योगदान को जो आज तक समाज ने नकारा है, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उनके सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया। निशिकांत दुबे के फौरन बाद, ठीक बाद, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी को अपनी बात रखने का मौका मिला चेयर की तरफ से। उन्होंने भी जो विजय दिवस है उसके ही आधार पर विजय दिवस को लेकर के ही बोलना शुरू किया। पहले तो उन्होंने सरकार पे तंज कसा कि चलिए लेट ही सही, आपको याद तो आया, लेकिन विजय दिवस पर बोलते हुए उन्होंने प्रमुखता से स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जिक्र किया, उनके नेतृत्व का जिक्र किया और उनको बधाई दी।
ऐसा करते हुए प्रियंका गांधी ने मौजूदा समय में, आज के समय में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो मामला उठाते हुए केंद्र सरकार से कहा कि केंद्र सरकार को इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए और बांग्लादेश सरकार के सामने कठोर ऐतराज जताना चाहिए। उन्होंने, प्रियंका गांधी ने इस मौके पर यह भी कहा कि बांग्लादेश लड़ाई की जो एक आइकॉनिक इमेज थी जो कि सेना भवन में लगाई गई थी उसको बदल दिया गया। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने वो सुनिए। एक बात और नोट करते जाइए कि प्रियंका गांधी जब अपनी बात कह रही थी उसी दौरान चेयर की तरफ से पहले एक बार टोका टिप्पणी होती है, उनको टोका जाता है, कांग्रेस के सांसद नाराज हो जाते हैं, नाराजगी के बाद उनको फिर से अपनी बात कहने का मौका मिलता है। जब वो अपनी बात कही रही होती हैं तभी चेयर की तरफ से अगले सदस्य का नाम ले लिया जाता है और इस सब की वजह से कांग्रेसी सांसद खासे नाराज हो जाते हैं और लोकसभा से वो वॉकआउट कर जाते हैं। यहां हम आपको दिखाते हैं कि प्रियंका गांधी क्या कुछ बोलने के लिए खड़ी हुई और उसके बाद कैसे माहौल बदला। देखिए। सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैन्य अधिकारों को, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था, पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं दो मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी, लोकतंत्र का असूल। माननीय सदस्य श्री विरितो प्रांत, एक मिनट में खत्म करिए। मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। सभापति महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। दो मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी, वो भी एसोसिएट करेंगे प्लीज। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो, पूरे तो माइक। सेना के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी, उन महान से हो गया। लोकसभा में बीजेडी सांसद सुलता देव ने पीएम मोदी के लोकसभा में दिए माल वाले बयान पर ऐतराज जताया। कल संविधान सभा पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में अटल जी की सरकार गिरने का जिक्र किया और उस दौरान कैसे उनकी सरकार गिर गई थी इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि माल तब भी बिकते थे। इसी बात से सांसद महोदय नाराज हो गए और उन्होंने ये कहा कि हम माल नहीं हैं,
हम सांसद हैं। मुझे एतराज है माननीय प्रधानमंत्री जब ये बात बोले लोकसभा में कि हम माल है। माल कौन है मैडम? माल कौन है? हम लोग एमपीज है। अटल जी को हम नमन इसीलिए करते थे क्योंकि वो हमको एमपी समझते थे, इसीलिए एक वोट से हारना सही समझे मगर खरीदारी नहीं की। आज हम लोगों को माल बोला जा रहा है। मुझे एतराज है माल से, और सारे एमपीज को माल बोलने के लिए क्या रखा हुआ है, ये सही नहीं है। शून्यकाल 2 बजे खत्म हुआ तो लोकसभा में वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा में भाग लेते हुए बिहार के काराकाट से सीपीआई एमएल के सांसद राजा राम सिंह ने अडानी की बढ़ती संपत्ति का जिक्र किया और अडानी मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने मौजूदा केंद्र सरकार को घेरा। क्या बोले राजा राम सिंह, सुनते जाइए। अडानी के प्रॉपर्टी पर वो इतराते रहते हैं कि उनका संपत्ति बढ़ेगा तो देश का संपत्ति बढ़ेगा। मैं कुछ आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। HTIL प्रोजेक्ट है, इसे अडानी प्रॉपर्टीज ने लिया 7,795 करोड़ की प्रॉपर्टी को 285 करोड़ में। रेडियस एस्टेट एंड डेवलपर्स अडानी गुड होम्स ने लिया 1700 की प्रॉपर्टी को 76 करोड़ में। नेशनल रैन कॉरपोरेशन अडानी प्रॉपर्टीज ने लिया 1175 करोड़ की प्रॉपर्टी को 160 करोड़ में। SR पावर MP लिमिटेड अडानी पावर लिमिटेड ने लिया 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को 2,500 में। दिल्ली पोर्ट लिमिटेड कंपनी को अडानी पोर्ट ने लिया 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को 705 करोड़ में, और कुल मिलाकर के 61,832 करोड़ की प्रॉपर्टी को 15,977 करोड़ में खरीदा। और ये बैंक ने एस्टीमेट लगाया, ये हमने एस्टीमेट नहीं लगाया है, बैंक ने ही एस्टीमेट लगाया, इतना में दे दिया गया। मोदी जी कहते हैं कि ये वेल्थ क्रिएटर्स हैं, तो ये वेल्थ क्रिएटर्स हैं या वेल्थ लूटर्स हैं? ये वेल्थ लूटर्स हैं। और यहाँ हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक लोकसभा में हमारे आपके सांसद जो अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर जो चर्चा शुरू हुई 2 बजे, उस पर अभी भी चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा के बाद वोटिंग होगी और ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि ये चीज लोकसभा से पास हो जाएगी क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त नंबर्स हैं। अब कुछ बातें संसद भवन परिसर से कर लेते हैं। सपा सांसद अखिलेश यादव ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए संभल में पुलिस प्रशासन द्वारा कथित अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर के सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि हम लोग खुदाई करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग समाज को जोड़ने की बात करते हैं। देखिए अखिलेश यादव क्या कुछ बोले। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोजना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव के अलावे कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी संसद भवन परिसर में मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने 0 आवर में उनके साथ जो हुआ उन्होंने बोलने की कोशिश की और जो टोका टोकी आपने देखी उस बारे में बयान दिया। क्या कुछ बोली वो मीडिया के सामने उस मामले को लेकर के, देखिए। तो उन्होंने कहा कि बात करने देंगे। फिर मुझे एक मैसेज आया कि हम विजय दिवस के विषय पे आप बात नहीं कर सकते, उस पर सरकार बात करेगी। तब तक सरकार को याद नहीं था शायद। फिर शायद उन्होंने निशिकांत दुबे जी को मौका दिया तो उन्होंने कुछ कहा। उसके बाद मैंने बोला 2 मिनट के लिए और मैं सिर्फ 2 मुद्दे उठा रही थी। एक तो सबसे पहले तो मैं विजय दिवस की याद में जितने भी शहीद सैनिक थे, जितने भी लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको नमन करना चाहती थी, जनता को नमन करना चाहती थी। तो जो दृढ़ होकर सेना के साथ खड़ी रही, नेतृत्व के साथ खड़ी रही।
तो आज की संसद रिपोर्ट में इतना ही। आप पूरा शो देखते हुए यहां तक पहुंचे हैं, इसलिए सबसे पहले आपको बधाई दें। अब आपकी बारी है हमारे शो के बारे में कमेंट करके अपनी राय दीजिए, संसद की कार्यवाही के बारे में राय दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के दूसरे मेंबर्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते चलिए, क्योंकि संसद पर, संसद की कार्यवाही पर आपकी नजर होनी चाहिए। कल फिर से भेंट होगी इसी शो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर उत्तर भारत में कहीं रह रहे हैं, उत्तर भारत से हमारा शो देख रहे हैं, तो ठंड बढ़ गई है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, इसलिए अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों का भी खास ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।